Yeah. So guys, today's session is going to be on speed math. Now you guys need to remember that speed math is something that will help you in your DI and your quant. This is something that you are desperately going to rely on to have a fast calculation speed. तुम्हें बहुत जरूरी है fast calculation speed होना, because all your quant के sums they will either be very technically difficult, like for example तुम्हें उसका question समझने में ही time लगेगा, या फिर अगर क्वेश्चन समझना इजी है तो you'll have to calculate a lot. You'll have to calculate very difficult numbers, like we'll see in today's lectures. Also, where I can do that. Wait, is my voice cracking for everyone? Okay, just a minute. I'll just attach a mic. Just give me 1 minute. Okay, is my voice audible now, guys? I just turned on the mic. Is it audible now? Okay, I'm glad. Chalo. Now guys, back to the lecture, and I hope you understand that these sessions are going to be a little fast, but these are planned to be a little fast. So make sure that तुम थोड़ा पढ़ाई करके आओगे तो तुम्हें lecture पूरा बहुत अच्छे से जाएगा, and वो fast pace से तुम्हें problem नहीं होगा. The point behind the fast pace is that we want to crunch as much information as we can in each and every session. So as I said, I'm going to throw out 100 things at you. You guys have to try to catch at least 50, 60. The more you catch, the better your preparation will get. Okay. Yes, there are questions regarding quants, but आज का questions will be mainly related to calculation. Okay, चलो guys. So squares, cubes, and reciprocals. Squares and cubes तो सबको पता है. Reciprocals many people get confused. They are 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3. कितना percentage होता है that is. Now how are you to find that? You will just when very simply just. Are you guys familiar with reciprocals? सबको याद है सारे reciprocals? Okay. So guys understand कि तुम्हें 20, I suggest कि तुम्हें 20 तक के सारे reciprocals बहुत अच्छे से एकदम मुंह पे होने चाहिए. And when I say कि एकदम मुंह पे है, by that I mean कि सिर्फ तुम्हें 1 by 20, 1 by 17, 1 by 16 करके फायदा नहीं है. When I say that you need to know all of them, by that I mean that if I ask you what is 1 by 7, everyone knows that is 14.28. But where it gets difficult, जो हमें sums में आता है, that is when you have something like a 4 by 7. तो 4 by 7 को तुम कैसे calculate करोगे? That's something nobody knows. You have to remember a few things. Now understand, इधर तक का सब कुछ calculate करना बहुत easy है. 1 by 6 तक. Because सब कुछ बस multiply करना है बहुत normal numbers से. हाँ 1 by 7 into 4, but आकाश ये याद रखना जरूरी नहीं है. So there is one trick that I always tell my students to use. This is one trick that has helped me a lot. Guys, can anyone help me out? How do I get the whiteboard? There is a whiteboard option here. I forgot. Okay, anyway, screw it. So what I suggest is, guys, understand that the 7 ka table 1 by 7 works in a circle. Now, sir, what is the value of pi? Can somebody tell me the value of pi? Somebody please tell me the value of pi. Yeah, 22 by 7, 3.14. But understand that 3.14 is a very rudimentary value. 3.14 कहाँ से आया? 22 by 7 can also be written as 21 by 7 plus 1 by 7. सही है? सबको समझा है? मैंने बस. So now 21 by 7 is where the 3 comes out of, and plus इसका value. Now इसका value is 0.14. But what is it exactly? Okay. Thank you. हाँ, whiteboard. Thank you so much, Arnab. Yeah.
So guys, now understand where does the 0.14 come from. Now understand that the value of 1 by 7 is equal to 0.142857 bar. What does the bar mean, guys? What is the meaning of the bar? Can anybody please help me? Okay, exactly, it's recurring. इसका मतलब 142857 के बाद वापस 142857 आएगा एंड वो सेम चीज रिपीट होती रहेगी घड़ी 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 घड़ी. What our benefit is this 142857. Understand how this will help us. 7 goes in a circle. Just write down in the circle these values 1, 4, 2, 8, 5 and 7. सबको समझा मैंने अब तक क्या किया? मैंने सिर्फ ये जो वैल्यू है उसको ही सर्कल में लिख दिया. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 by 7. 1 by 7 सिर्फ याद रखना है, इट इज 142857. ओके, सो दैट इज 14.28%. नाउ इफ एक मिनट गाइस, मेरा आवाज गया क्या? मतलब मेरा आवाज वापस पहले जैसा हो गया क्या? ओके फाइन, ग्रेट. नाउ अंडरस्टैंड दैट 1 by 7 इज 14.28. ये इधर से मिला 14.28. बट इफ आई समझो वांट टू फाइंड 3 by 7, सो ऑल आई हैव टू डू इज मुझे 14 into 3 करना है. 14 into 3 कितना हो जाएगा? 42. तो 4 से चालू होता है ना, सो 3 by 7 इज गोइंग टू बी 42.85. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड 5 by 7, तो 5 by 7 मतलब क्या होगा? मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा. तो 14 into 5 करो, कितना हो गया? 14 into 5 is 70. स्टार्ट फ्रॉम 7 ना, तो 5 by 7 is 71.42. 6 by 7, 14 into 6 करना है, स्टार्ट फ्रॉम 8 क्योंकि 84 आता है, सो 85.71. Does everybody understand how this works? So by this circle you can find out anything divided by 7 very simply. मतलब समझो, now if I tell you that if I want to find out the value of 231 by 7, do you understand? तो what I have to do is let's just divide into 3 बाद में 20. अच्छा सॉरी, ये तो perfect आ गया. I just took a random number. If I say I want to find 348 by 7, not divisible by 7, how will I do this? 7 से कितना होता है? 7 into 4 28, 68 बचा. 7 into 9, right? 7 into 9 63, बचा कितना? 5. All you have to do is 5 का वैल्यू लिख देना है. 5 का वैल्यू क्या है? 142857. तो 7 के बाद 4 वैल्यूज ले लो, 7142. सो द 49.71. Did everybody understand this? एक मिनट. गाइस सबको समझा ये मैंने क्या किया? ओके, आई रिपीट इट. अंडरस्टैंड दिस गाइस. सबको वो सर्कल तक समझा क्या? 7 का सर्कल होता है, 7 एज अ सर्कल. द सर्कल में तुम्हें बस पाई का वैल्यू लिख देना है. One four two eight five seven. This is the 7 का circle. Now understand this. This helps you divide by 7, divide by 14, divide by 21, all those numbers. Okay. Now if I want to find out what is 3 by 7, 3 by 7 is what? 1 by 7 into 3, and 1 by 7 का वैल्यू तो 14.28 है, तो it is 0.1428 into 3. So what will this be? 14 into 3 कर दो, कितना आ गया? 42. तो 4 से चालू कर दो, 4 से लेके 4 डिजिट ले लो, 42.85. So 3 by 7 का वैल्यू is 42.85. सबको समझा? Now similarly if I have been given
something like a, wait, if I have been given something difficult like a 524 divided by 7, तो मुझे क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करो, देखो सबसे नजदीक वाला परफेक्ट वैल्यू कौन सा है. सो 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आता है, 3 बच गया तो 3 कैरी ओवर ले लेंगे. बाद में 7 इंटू 4 28, बच कितना गया 6. सो व्हाट आई हैव टू डू इज 74 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 74 पॉइंट समथिंग. तो वो पॉइंट समथिंग कैसे मिलेगा, आई डिवाइड 6 बाई 7. 6 बाई 7 कैसे ढूंढेंगे, 14.28 इज 1 बाई 7, तो 6 बाई 7 विल बी 14 इंटू 6. 14 इंटू 6 कितना हो जाता है गाइस, इट इज 84. हाँ 84. तो वी स्टार्ट फ्रॉम 8, क्योंकि 84 स्टार्ट फ्रॉम 8 ना, वी स्टार्ट फ्रॉम 8. 85.71 दैट इज 85. तो 74.85 दैट इज द वैल्यू ऑफ 524 डिवाइडेड बाय 7. सबको समझा? Did everybody understand it now? Okay, great. I hope you guys really like this trick because this is very helpful. Okay? So these are the things with reciprocals. Now you need to understand the only reciprocals जहां तुम्हें problem आएगी, it is 1 by 13, 1 by 17 and 1 by 19. ये तीन में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जक मार के सॉल्व करना पड़ेगा. समझ रहे हो? बट अ स्मॉल ट्रिक टू दिस इज 1 by 19 को तुम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, 1 by 20 कर दो एंड उससे थोड़ा ज्यादा, बिकॉज इफ 100 by 20 is 5, 100 by 19 equals to 5.19, 5.17 या फिर ऐसा कुछ आता है. सो क्या होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड 1 by 20 और उससे थोड़ा ज्यादा. सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट 1 by 19 का वैल्यू. बट 13 और 17 के लिए तुम्हें जक मार के सॉल्व करना पड़ेगा. सो व्हाट इंस्टेड आई सजेस्ट इज दैट सीईटी में नेवर सॉल्व व्हेन यू हैव डिवाइडेड बाय 13 एंड 17. क्या करो, पूरे सम में समझो अगर यू हैव 441 by 13, हाँ, तो याद रखो हमेशा 99% टाइम्स सम में किधर ना किधर और एक बार 13 आएगा विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 13. सो ये हमेशा 13 13 कैंसिल हो जाता है. Or you will have a multiple of 13, or you will have a power of 13, that is you will have 169 or you will have 2197, ऐसा कुछ होगा, 2197 होगा which is 13 cube. तो ऐसे तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा जिससे नीचे वाला 13 कट हो जाएगा. नेवर डिवाइड बाय 13 and 17 in CET. ओके, चलो. Now guys we come on to something that is very basic but something that most people screw up on, that is addition and subtraction. Now understand, if I give you these numbers, sorry 6 7, and if you have to add this to 2 8 1 4 5 7 2 3, तुम्हें ऐसे ऐड करना है ना. Now what most people do is that they start adding the single digit. But guys understand, you guys are already adults. You guys even very generally go to the किराने की दुकान and you ask for stuff. समझो अगर 25-30 रुपए का माल है, you guys add up the numbers very easily. Use the same logic here. Start dividing numbers into two parts. So if you understand this, तुम्हारा एडिशन है, एडिशन का टाइम तुम्हारा हाफ से कम हो जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का टाइम. So if I tell you what is 67 plus 23, think in terms of money. 67 plus 23 is 90. Write down 90. 57 plus 27, that is 86. 81 14, 95. And 28 42, 70. This brings down the speed of, like this doubles your speed of addition, because ये इतने दो डिजिट के नंबर्स चिंदी तुम नॉर्मली भी सॉल्व कर लेते हो, बट मेनी पीपल गेट स्टक कि वो अभी तक एक डिजिट ही ऐड कर रहे हैं. And do this even when you have more numbers. Now this doesn't sound like more of a trick, this sounds like more of a thoda jugaad, but understand that this works very well for each and every person that I've taught it to. You know, when there's a problem, the problem is when you guys have to subtract this. Tell me, what is the normal way of subtraction that we always learn from the start? How do you subtract, guys? Tell me, how will you start subtracting normally?
तुम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हो ना, लाइक यू स्टार्ट 1 1 1 1 1, राइट टू लेफ्ट जाते हो, राइट? हाँ गाइस, is that the normal way of going? I suggest go the other way around. What I suggest is again divide it into two parts, but go in the other direction. How am I saying this? Understand? 42 minus 28 कितना हो जाता है? 42 minus 28 is 14. Write down 14. 81 minus 14. Oh, that is very easy. That is 67. बट अंडरस्टैंड, उसके बाद वाला नंबर बस देख लो, उसके बाद वाला नंबर क्या है? ऊपर वाला नंबर छोटा है ना नीचे वाले से, तो इसको 67 की जगह पे 66 लिख दो एंड मेक दैट 129. 129 माइनस 57. फॉर दिस अंडरस्टैंड गाइस, 129 माइनस 57 नहीं करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज 100 माइनस 57. 100 माइनस 57 इज इजी फॉर एवरीवन. 43 सही है. 43 आ गया ना, 43 प्लस 29 कर दो. Now understand why I am doing this. 43 plus 29. ये पहले समझो मैंने क्यों किया. You need to understand that what is 129 plus 57? 129 plus 57 can also be written as 100 plus 29 minus 57, right? इधर एडिशन है, तो मैं अभी ऐड करूं या फिर बाद में ऐड करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. So what I can do is 100 minus 57 कर दो एंड जो आंसर आया उसमें 29 ऐड कर दो. बिकॉज एडिशन काफी फास्ट होता है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन से. इन एवरीबॉडीज माइंड एडिशन इज मच फास्टर देन सब्ट्रैक्शन. सो ऑल यू हैव टू डू इज 43 प्लस 29. व्हाट डज दिस कम डाउन टू? 72. सो 72 एंड फाइनली 67 माइनस 23 इज 44. सबको समझा है मैंने सब्ट्रैक्ट कैसे किया गाइस? ओके. सो वेद, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अगर तुम ये करने बैठे ना कि 43 प्लस 30 माइनस 1, तो तुम्हारा लॉजिक पूरा मर जा रहा है एडिशन का. बिकॉज व्हाट आई सेड इज दैट तुम्हें दो डिजिट्स का एडिशन करने ओरली आना चाहिए. सो दैट इज 43 प्लस 29 इज नॉट दैट मच. इतना समझो कि तुम सब्जी वाले से बात कर रहे हो. इफ यू आर इवन टॉकिंग टू अ सब्जी वाला, तुम 43 प्लस 29 तो करोगे ही. यू विल इजीली रियलाइज दिस इज 72. तो उसके लिए प्लीज डोंट स्टार्ट डूइंग सच ट्रिक्स लाइक 43 प्लस 30 माइनस 1. इन स्मार्ट ट्रिक्स यू विल जस्ट इंस्टेड स्टार्ट वर्किंग मोर देन यू आर सपोज्ड टू वर्क. Did everybody understand these tricks, like these methods के addition subtraction में क्या ज्यादा easy पड़ता है? Okay guys, so now let's wait a little. Please at least solve 4 of these. चलो इसमें से 4 solve करो. Use my method and tell me if it's going a little faster or not. Use my method and solve the first 4. चलो guys, I hope you are sitting with a pen and paper guys. Guys, you have only 30 seconds each. 30 seconds, 40 seconds each. उसके ऊपर मैं नहीं दूंगा 3 मिनट से ज्यादा.
गाइस 2 मिनट हो गए, आई हैवंट गॉटन एनी रिप्लाईज. Okay. I hope this, if you used my trick, it went faster than normal addition and subtraction. Did you guys use my tricks? अरे subtraction के भी एक दो कर दो guys, subtraction के भी एक दो कर दो please. मैंने सिर्फ एडिशन वाला ही मार्क किया है, बट subtraction के भी एक दो कर दो please. Yeah, Dhaval, आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, but I am telling you, all my tricks will take a little time to make it a habit of yours. But these tricks, you must understand, for the first time you are solving this, you are already doing much faster than you would have done the first time you learned the normal addition. Understand that this trick का understanding will help you a lot. ये कहाँ पे सबसे ज्यादा काम आएगा is DI. DI में this helps like crazy. Guys, please also solve subtraction के भी दो solve कर दो, so you will get an idea if this is working or not. Okay? I hope my trick helped, guys. Like, I hope this method helped of calculating. Chalo. Now we go on to a little more difficult part, that is multiplication. Guys, understand that in CET we are very normally asked to solve multiplications which are very difficult as compared to the normal ones. So understand, if I have, give me two random 3-digit numbers, guys. Just give me two random 3-digit numbers. Okay, 579, 852 हो गया. 579 and 852. Now this multiplication for CET is very normal. ये मतलब ये लेवल का तो बहुत इजीली आता है CET में. The way to solve multiplication, if for all the people who don't know, the best way is to use it in terms of points. Okay, I'll teach by points and बाद में नंबर से लेंगे. समझो अगर 3 digit नंबर है ऊपर and 3 digit नंबर है नीचे. Okay, it goes in steps में जाता है. सबको हिंदी समझता है ना गाइस? If I switch from हिंदी इंग्लिश सबको समझेगा, राइट? अगर किसी को नहीं समझता है तो बोल दो. ओके ओके कूल, मुझे किसी का नो नहीं आया तो ग्रेट है. चलो, नाउ अंडरस्टैंड गाइस कि कैसे जाएगा. द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दिस नंबर इनटू दिस नंबर. ओके, हर नीचे वाला नंबर को हम लेफ्ट से चालू करेंगे, ऊपर वाले नंबर सॉरी राइट से चालू करेंगे, ऊपर वाले नंबर को भी राइट से चालू करेंगे. पहला स्टेप विल बी ये नंबर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर. सेकेंड स्टेप में ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा एंड थर्ड स्टेप में ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा. ऊपर वाले नंबर्स खत्म तो इसका काम खत्म, इसको भगा दो. बट जब सेकेंड स्टेप में ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तब हम इसको खाली नहीं रख सकते, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे ये थर्ड स्टेप में यहां चला गया, वैसे सेकेंड स्टेप में ये भी एक पॉइंट आगे बढ़ेगा एंड ये खाली हो गया तो वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस थर्ड स्टेप में. ओके, नाउ आई show this by with numbers. The numbers that we got were 852 and 579. Yeah, 579 and 852. Guys, this is not only for 3-digit numbers. ये ट्रिक कितने भी नंबर्स में चलता है. मैंने एग्जाम में इससे 5-digit नंबर बाय 5-digit नंबर भी मल्टीप्लाई किया है very confidently, because the question literally that we were asked was 5-digit number into 5-digit number का calculation, multiplication. That's it. और ये साल की बात है. Literally this year I was asked this question. So it's not even like बहुत पहले की बात है. Okay. So what will be the first step, guys? The first step, as I told you, will be 2 into 9. Okay. 2 into 9, 18. इसमें भी नॉर्मल की तरह 1 कैरी ओवर कर देंगे. Okay. Second step is 2 into 7. क्योंकि 2 9 से हो गया तो 2 आगे बढ़ता रहेगा. So 2 into 7 is 14. 14 plus 5 into 9. 5 into 9 is 45. 14 plus 45 कितना हो जाता है? 59. 59 plus 1, 60. तो 0 and 6 carry over.
अब हम करेंगे 2 इंटू 5. 2 इंटू 5 इज 10. 10 प्लस 5 इंटू 7, बिकॉज 5 का तो 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 5 इंटू 7 इज 35. सो 10 प्लस 35, दैट इज हाउ मच? 45. 45 प्लस 8 इंटू 9. 8 इंटू 9 कितना होता है? 72. 45 प्लस 72, 117. 117 plus 6, 123. 3 and 12 carry over. ओके गाइस, अब क्या 2 का काम 5 के साथ हो गया ना, सो अब 2 किसी से मल्टीप्लाई होगा. 2 के पास आगे कोई नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, सो 2 का काम हो गया, खत्म. 9 भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना. 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 का भी काम खत्म हो गया. वी हैव टू इन एवरी स्टेप जस्ट कीप मूविंग, एक एक स्टेप आगे. अब का स्टेप क्या होगा? 5 इंटू 5 25 प्लस 8 इंटू 7 56. सॉरी, 25 प्लस 56 कितना हुआ गाइस? 81. 81 प्लस 12 93. 3 एंड 9. बाद में सिंपली 8 इंटू 5 40 49. दिस इज द आंसर. 493308. और एक सम प्रैक्टिस करना है ना गाइस? डू यू वांट मी टू सॉल्व वन मोर प्रैक्टिस? यस. अब मैं दूसरे नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करता हूं. ओके, लेट्स हैव. अब एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं, बाद में एक 3 डिजिट इंटू 4 डिजिट लेंगे. ओके, गिव मी एनी 2 डिजिट नंबर्स. चलो मैं ही ले लेता हूं. 87 इंटू 48. बस वेट, वी विल डू दैट इन स्क्वायर्स. मैं तुम्हें स्क्वायर्स में सिखाऊंगा 88 इंटू 88 कैसे करते हैं. ओके, फॉर नाउ अभी नहीं, वो नहीं. चलो गाइस, 7 इंटू 8 कितना होता है? 56. 6 5 कैरी ओवर. उसके बाद क्या होगा? 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 4 इंटू 7. सो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64. 64 प्लस 28 92. 92, हाँ, 92 प्लस 5 97. 9 कैरी ओवर. फाइनली 4 into 8, 8 into 4 is 32. 32 plus 1 40, 41. 32 plus 9 41. 4176. Was this easier to understand guys? ये कैसे आया मुझे समझा? 4176 सबको? राज, did you understand? Okay, great. Now guys, understand this. Let's take a 3 digit. What if the numbers are not the same? मतलब 3 digit by 4 digit number है. Let's try this. Let's try 1 4 7 3 into 2 4 6. Okay, random numbers लिया है guys, random number है. Okay guys, now understand this. सबसे पहले तो सेम स्टेप होगा. 6 into 3 that's 18. 8 1 कैरी ओवर. 42 प्लस 12 कितना हो गया? 54 55. गाइज अब देखो, नाउ अंडरस्टैंड. अब क्या होगा? 4 इंटू 7 होगा एंड 6 इंटू 4 होगा. सो व्हाट एम आई सिंपली डूइंग? 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6. ओके, तो इन दोनों को मैं क्लब करके ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 4 इंटू 13, बिकॉज मैंने 4 कॉमन ले लिया. 7 प्लस 6. समझा सबको? ये मैंने 4 इंटू 13 कैसे लिया? व्हाट दिस विल डू इज दैट तुम्हें 2 कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे. तुम्हें क्या करना पड़ेगा वरना? 4 इंटू 6 4 इंटू 7 4 इंटू 6 24 24 प्लस 28 दोनों को ऐड करना पड़ेगा. उससे अच्छा सीधा तुम्हें अगर 13 का टेबल आता है, सो यू विल नो दैट 4 इंटू 13 इज 52. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो 52 इज मच बेटर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड भी करना है. उससे अच्छा तो सीधा 52 ले लो. सो वी हैव 52 प्लस 6 58. 58 प्लस 5 दैट 63. 3 6. अब समझो गाइस, ये 3 का सबसे मल्टीप्लीकेशन हो गया ना. 3 का किसी के साथ बाकी है मल्टीप्लीकेशन करना? नहीं बाकी है. तो 3 का काम खत्म.
3 का काम खत्म, तो नाउ यू हैव टू जस्ट सिंपली कीप गोइंग अहेड अहेड अहेड। ये 3 को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, एंड ऐसा 7 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, 1 भी निकल जाएगा धीरे धीरे। सो लेट्स डू। अब क्या करेंगे, 6 इंटू 1 6, ये एंड ये 6 प्लस 16 22, 22 प्लस 14, 22 प्लस 14 कितना होता है गाइस, 36, 36 प्लस 4, 36 प्लस 6 42, सो इधर आ जाएगा 2 इंटू 4। अब 7 भी सबसे मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 का काम भी खत्म। 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 6 1 कैरी ओवर, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। दिस इज द आंसर। सो गाइस समझे ये कैसे मल्टीप्लाई करना है, दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। गाइस प्लीज रिप्लाई टू मी ओनली, देन मुझे समझेगा कि तुम लोगों को समझा है या नहीं। आई रियली नीड अ लिटिल आंसर्स फ्रॉम यू। ओके, डू यू गाइस वांट मी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, मतलब मैं एक बार सिर्फ एक एग्जांपल लूं। आई विल सॉल्व इट एट माई स्पीड, तुम लोग को देख के समझ जाएगा क्या, तो मैं मेरी स्पीड पे एक सॉल्व करता हूं। ओके, so you will understand that what speed do you want to get at. चलो, give me any two numbers. चलो guys, give me any two numbers. I don't care how big they are. Try to keep them 4 digit 5 digit types. अरे अरे 50 है तो रोहित इतना छोटा नंबर मत दे यार, मैं सर हूं तेरा, थोड़ा रिस्पेक्ट रख। ओके चलो, आकाश has given me two good numbers, या फिर चलो रोहित का नंबर ले लेता हूं, 4268 9287, 4268 9287. Okay, are these numbers fine by everyone? चलो, I'll start solving. Guys, I'm not talking to you, but you just understand कि मैं क्या कर रहा हूँ, okay? Because I'll be solving at my speed. चलो, that is the answer, guys. That is the answer. 396366916. Did you guys understand that how fast can this happen, guys? I literally did not even take 50 seconds to solve the whole multiplication, 4 by 4. Yes, Akash, you need to reach this level. I legit know people who are much faster than even me. ये सेम ट्रिक यूज करके वो लोग मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। इनफैक्ट मेरा स्पीड भी आई वुड से अभी कम हो गया है। फ्रॉम दिस सीईटी मेरा स्पीड इससे भी ज्यादा था ये सीईटी में, थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया इसलिए। Okay guys, so I hope you understand this multiplication का method. Okay, now I'll want you to solve a few sums from here to just see if you guys have had the understanding of this. अरे यार ये फालतूगिरी, sorry. चलो guys, I want you to solve these two numbers. चलो,
यस यश, आई अंडरस्टैंड दैट मेंटल एडिशन तुम लोग का स्लो होता है, बट यूज माय ट्रिक ऑफ एडिशन. अगर तुम मेरी ट्रिक यूज करोगे ना तो टू डिजिट एडिशन बहुत इजी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है. इफ यू अंडरस्टैंड, मैं जब बाजू में लिख रहा था एडिशन के नंबर्स, आई वाज राइटिंग टू डिजिट ओनली एंड मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा था. दिस हेल्प्स अ लॉट. चलो गाइस, यू हैव दीस टू नंबर्स, प्लीज गो ऑन एंड मल्टीप्लाई देम. I'll give you 4 minutes to multiply these. चलो. नो आकाशदीप, यू आर रॉन्ग. आंसर गलत है तुम्हारा. यस, दैट इज राइट. वेद, तुम्हारे दोनों आंसर्स राइट है. यस, दैट इज राइट. Guys, is this method helping you? Yes, Raj, obviously you will need practice. This method is a little difficult. But once you practice this now, your multiplication will be very fast. Like you just saw my multiplication. And trust me, this is slower than where I was. So you can solve it much faster even than this. It just takes practice. Okay guys, we are moving ahead. Please रुक जाओ. चलो. चलो guys, now there is a little exception to this kind of a multiplication. Little exception मतलब ये तरीका कब नहीं यूज करना है. Okay? What if you have something like this? If you have a 991 multiplied by 1008. अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिया है ना, then don't use my trick of multiplication. Then there is another trick of multiplication. Okay? Tell me what is the nearest number that is a round figure to this. Round figure का मतलब, when I say round figure, I mean only 10 का multiples. Like 10, 100, 1000, वैसा types का. So 1000 is the nearest such number. So now understand this trick. Guys, ये trick में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है. Okay?
सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये देखो ये क्या है 100 माइनस 9, तो इधर बाजू में 1000 माइनस 9, तो इधर माइनस 9 लिख दो. दिस इज हाउ मच 1000 प्लस 8 प्लस 8. ओके, अब यहां पे तुम बाय डिफॉल्ट 1000 लिख दो नीचे. एंड इधर व्हाट इज 9 इंटू 8? 72, राइट? बट इट विल बी माइनस 72, माइनस 72, माइनस 72. सो यू व्हाट यू विल डू इज दैट, अगर माइनस है ना तो इसमें से एक निकाल दो, यू विल मेक दिस 999, एंड जितना एक निकल गया है ना यू यूज दैट हियर, दिस विल बी 100, सॉरी 1000. 1000 माइनस 72, हाउ मच इज 1000 माइनस 72? 9928, sorry 928. This is your answer, guys. सबको समझा है मैंने क्या किया? Did everybody understand this? Let's try with two more numbers. पर इस बार दोनों को सेम साइड रखते हैं. 72 negative because 991 is 100 minus 9 ना, and 1008 is 100 plus हाँ सॉरी 100 plus 72, 100 plus 8. So इसीलिए minus 9 into plus 8 that is minus 72. That is why हमने minus किया. आकाशदीप. So guys, now let's try something like this. Let's try 991 and नहीं सॉरी 991 नहीं, रिपीट 996 into 993. ओके, लेट्स ट्राई दिस. क्या हो जाएगा गाइस? -4 एंड -7. तो इधर क्या आना चाहिए नीचे गाइस? व्हाट शुड बी नीचे? -4 -7 है, तो क्या आएगा? Yep, 28 एग्जैक्टली. अब समझो 996 माइनस अरे 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 गाइस, आई एम रियली सॉरी, आई स्क्रूड अप अ लिटिल, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये मेरा मिस्टेक हो गया. व्हाट यू हैव टू डू इज 996 माइनस 7. 996 माइनस 7 करो, कितना आ जाएगा? 989. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये भी सेम ही आएगा. 993 माइनस 4 कितना आ गया? 989. सो दिस हैज टू बी 989. आई एम रियली सॉरी, वो ऐसा क्रॉस वाला होता है. दिस इज माय मिस्टेक. सो द आंसर इज 989028. 028 क्यों? क्योंकि इनका सबसे नियरेस्ट नंबर जिसको हम वो नियरेस्ट इंटीजर इज 1000 ना, सो इसीलिए पीछे 1000 रहेगा एंड आगे 1000 रहेगा. पीछे 3 0, आगे ज्यादा नंबर्स. So we will solve the पहले वाले example again, that is 991 and 1008. So इसका -9 and +8. So this will again be the same thing. 999 इधर -72, but हम 999 -1 करेंगे. 999 -1 is guys 998. 998 and 1000 minus 72, that is 928. This is the answer. That's a little screw up on my side, guys. सबको समझा है मैंने क्या किया guys? अब समझा? I have to add ऐसे 991 plus 8 and 1008 minus 9. The number will always be the same, I can guarantee it. Let's try it with a little more difficult number. So we will do a 987 into 1016. Okay, let's try this. Tell me guys, the number that we will take is, the nearest number that we will take is 1000. 1000 से कंपेयर करेंगे. So 987 and 1000 कितना बचा?
-13 एग्जैक्टली, एंड इधर क्या आएगा +16. मल्टीप्लाई 13 एंड 16 गाइस. उसके पहले ये लिख दो 987 प्लस 16 विल बी हाउ मच. करने की जरूरत भी नहीं है, 1016 माइनस 13 कर दो, बिकॉज आंसर तो सेम ही आएगा. हमेशा रिमेंबर कि ये आंसर सेम आएगा, इसका आंसर एंड इसका आंसर विल ऑलवेज बी सेम. सो व्हाट इज इजियर, 1016 माइनस 13 दैट इज 1003. तो 1003 लिख दो, एंड इधर क्या आएगा 13 इंटू 16. टेल मी गाइस 13 इंटू 16 कितना है? एग्जैक्टली 208, बट -208. सो आई विल राइट -208. एंड सिंस ये माइनस है, मैं इसमें से 1 निकाल दूंगा, दैट इज 1002, एंड वो 1 को मैं इधर आगे लगा दूंगा, तो 1000 माइनस 208 दैट इज 792. This is the answer guys, 1002 792. You can also try your calculators on this. सबको समझा मैंने क्या किया गाइस? Do you find this trick helpful for multiplication? चलो, हाँ, in case add, चलो add वाला भी ले लेते हैं. चलो guys, what if we have two numbers which are more than 1000? Let's take two numbers which are more than 1000. 1017 and 1006. Okay? अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा 17 एंड इधर आ जाएगा 6. प्लस है ना, दोनों में से कोई माइनस नहीं है, तो दोनों साइड प्लस ही होगा. 1017 प्लस 6 कितना हो गया 1023, एंड इधर भी सेम ही आएगा, तो 1023, एंड इनका क्या आ गया 17 इंटू 6. 17 इंटू 6 इज गाइस 102 एग्जैक्टली. सो 102 ऑलरेडी 3 डिजिट है ना, तो 0 डालने की जरूरत नहीं है. सो द आंसर इज 1023 102. दैट इज द आंसर. सबको समझा गाइस? Let's try this on the calculators also. Okay. 10006 into 1017. 1023 102. समझा सबको guys? It's the same answer. So our answer is absolutely right. I hope everybody understood this trick. ये trick सबको समझा ना guys? Please start using these tricks for your normal calculations. Okay? Hello. Let's move ahead, guys. Now we have squares and square roots. My favorites. चलो, squares का tricks. Guys, what if we have to square a number like this? एक मिनट, हाँ, चैट गायब हो गया. Let's try finding the square of 26. 26 का स्क्वायर करना है ना. What is easier, guys? 6 स्क्वायर सबको याद है कितना होता है? 6 स्क्वायर is how much? 36. तो 6 3 कैरी ओवर, 2 into 6 करो 12, 12 plus 3 कर दो. स्क्वायर रूट याद रखने की जरूरत नहीं है आकाशदीप. What you need to remember is squares. Square root का मेथड है. I will teach you square root का मेथड. Square root का मेथड is very 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 simple. You guys would have never thought कि square root इतना easily होता है. Okay? चलो guys, let's try with something that we already know. चलो, let's try 21 into 21. Okay? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1.
Nothing carry over. What is 2 into 1? 2. उसका डबल कर दो, उसका डबल कितना हुआ 4, इधर आ जाएगा 4, एंड फाइनली 4 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज 4. दैट इज द आंसर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट वाले का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसका डबल कर दो, एंड फाइनली लेफ्ट वाले का स्क्वायर. लेट्स ट्राई विथ अ बिगर नंबर 25. ओके, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 2 कैरी ओवर. 5 इंटू 2 कितना हुआ गाइस 10. 10 का डबल 20. 20 प्लस 2 करने का. गाइस याद रखना हमेशा 20 प्लस 2 होगा. ऐसा नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 है उसका डबल नहीं होगा. 5 इंटू 2 दैट इज 10. 10 का डबल करेंगे दैट इज 20, एंड 20 प्लस 2, तो इधर आ जाएगा 2, एंड 2 कैरी ओवर, एंड 2 स्क्वायर इज 4. 4 प्लस 2 6. 625. This is the 25 का square. This is how you find the square of anything. Let's try with a more difficult number, 87. Okay? चलो guys, 87. पहले क्या करेंगे 7 square. 7 square is 49. 9 4 carry over. 8 into 7 is 56. 56 का डबल 112 plus 4 116. 6 11 carry over. And finally 8 का स्क्वायर is 64. 64 plus 11 75. 7569. This is how you find the square of any number 2 digit. But इसका यही है ये वाली मेथड का कि अगर समझो तुम्हें 3 डिजिट नंबर आ गया तो तुम्हें ऐसे लेना पड़ेगा. समझो अगर 105 है या फिर चलो 102, तो यू विल हैव टू ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा. 2 स्क्वायर इज 4, कुछ कैरी ओवर नहीं है. 2 इंटू 10 20. 20 का डबल 40 0 4, एंड 10 स्क्वायर 100. 100 प्लस 4 104. ऐसे करना पड़ेगा अगर 3 डिजिट नंबर आ गया तो. ओके, 3 डिजिट के ऊपर आई डोंट सजेस्ट दिस ट्रिक. एंड अगर 3 डिजिट नंबर आ रहा है ना गाइस, समथिंग दैट इज नॉट अराउंड 100, then I suggest use अपना नॉर्मल वाला मेथड, अपना 237 ये वाला मेथड यूज कर लो. अरे सॉरी, अपना यही वाला मेथड यूज कर लो. समझा गाइस? तो डोंट ब्लाइंडली यूज दिस ट्रिक. ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कौन से नंबर में कौन सा ट्रिक ज्यादा अच्छे से जमेगा. समझा? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द स्क्वायर्स वाला ट्रिक? ओके, I'll give you 3 numbers, find the squares of all 3, okay? ये तीनों के स्क्वायर्स ढूंढ के बोलो मुझे गाइस, प्लीज फाइंड द स्क्वायर्स फास्ट. Sudeep, that is right. You solved it pretty fast. I'm glad. नहीं, ओके गाइस, तुम किसका आंसर लिख रहे हो वो मुझे बोलो. टेल मी किसका स्क्वायर है, जो भी है तुम नंबर लिख रहे हो. टेल मी किसका स्क्वायर क्या है. ओके, आई नीड टू नो कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो. Yes, Raj, that is right. Ved, that is right. ओके ग्रेट. काफी लोगों को 2 के आंसर्स आ गए हैं, तीसरे वाले का आंसर आना बाकी है. यस वेद, यू आर राइट. चलो गाइस, डज दिस ट्रिक हेल्प टू फाइंड स्क्वायर्स? Okay, now one exception to this trick is when you have a number that ends in 5. If you have a number that ends in 5, समझो 35,
तो इसके लिए वेरी सिंपल, 5 का एंड, जो नंबर एंड में 5 में एंड होता है ना, उसका स्क्वायर करने के लिए जस्ट पीछे का नंबर लिख दो 25, एंड जो आगे का नंबर है ना 3 इंटू द नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3 इंटू 4 12, 1225, एंड दिस विल वर्क नो मैटर व्हाट द नंबर इज. समझो अगर तुम्हें दिया है 65, तो लास्ट में लिख देंगे 25 एंड 6 इंटू 7 42, 4225. Even works on bigger numbers. समझो अगर if you have 215, 5 into 5 25, 21 into 22 कितना होगा guys? 21 into 22 नो आकाश, दिस ट्रिक ओनली वर्क्स, ये वाला पर्टिकुलर ट्रिक ओनली वर्क्स व्हेन इट्स एंडिंग इन 5. ये सिर्फ 5 के लिए स्पेशल ट्रिक है, बाकी किसी के लिए नहीं. वेद 1425 के लिए सेम करेंगे, 142 इंटू 143 कर दो, सो 142 143 6 520 200625. This is the answer for 142 का स्क्वायर. 1425 का स्क्वायर इज 2006.25. गाइस सबको समझा ये कैसे करना है? Also I'm getting replies from very less people guys, so I hope सबको समझ रहा है, किसी के ऊपर से नहीं जा रहा ये सारी ट्रिक्स. I know there is a lot of information at the same point, but that is what these sessions are for. Okay? चलो. Now guys, let's move on to something that everybody is very scared of. Okay? If you have to find the square root of something. Yes आकाश, ये तो कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ है. Now I'm teaching you how to find square roots. I will also tell you how to find cubes. मतलब in अभी 2 मिनट में we'll also find the cubes of maybe 37 and 42 and everything like that. Don't worry, that is so much bigger. Okay? चलो. Okay guys, a nice doubt from Hitesh. हितेश ने हमें ये दिया है, हितेश ने पूछा कि व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड समथिंग लाइक अ 99 स्क्वायर. ओके, 99 स्क्वायर गाइस अंडरस्टैंड वेरी सिंपली, हर चीज में मेरा ट्रिक मत यूज करो, देयर इज थोड़ा दिमाग यूज करो. 99 स्क्वायर इज 100 माइनस 1 स्क्वायर. कैसे करोगे? 100 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज 100 स्क्वायर minus 2ab, 2 into 100 into 1, 200 plus 1, so that is 9801. ऐसे मिलेगा. And the same will work out for anything like even a 97 square or a 96 square. That will be 100 minus 3 and 100 minus 4 respectively. I hope सबको समझा है. Now guys, how do we deal with something as difficult as square roots? Now, if I have told you that I want to find the square root of a number 46225, okay? Now, this seems very scary, but guys, understand that this is very simple, as it is. Always write down, guys. Always remember this के सबका squares एक बार बाजू में लिख देना एग्जाम में. अभी सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम, एग्जाम के टाइम तुम्हें ये ट्रिक याद रह जाएगा. हाँ यश, वो बाद में, ये रुको, मैं ये नहीं, मैं और थोड़ा डिफिकल्ट वाला देता हूं. ओके, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि लास्ट डिजिट क्या होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Guys, understand this. What are a digit that each and every number का square ends with? If a number ends in 1,
लाइक समझो 11 है या 21 है, द स्क्वायर ऑफ इट विल ऑलवेज एंड इन 1. एंड ऑल्सो अ नंबर दैट एंड्स इन 9, उसका स्क्वायर भी 1 में एंड होगा. सिमिलरली 2 स्क्वायर क्या होता है 4, बट ऑल्सो 8 स्क्वायर इज 64, so that will end in 4. 3 square is 9, 7 square is 49, so that will end in 9. 4 and 6 both end in 6, and 5 का square ends in 5. Any perfect square can have the last digit as only 5, 6, 9, 4 or 1. अगर ये 5 में से कोई नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. दैट मीन्स वो नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट अ रियल नंबर. So let's check. Let's find something like a square root of 3136. 3136 ना guys, last number क्या है? Last number is 36. Sorry, 3 को नहीं सर्कल मारना था. Last number is 6. If the last number is 6, तो इसका जो square root है उसका ending क्या होगा? It will be either be ending in 4 or it will be ending in 6. So we will write 4 or 6. And क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर में क्या ऊपर 2 लिखते हैं, तो 2 नंबर छोड़ दो, लीव द लास्ट 2 नंबर्स, एंड जितना बच गया ना, फाइंड द नियरेस्ट नंबर्स. इसके नीचे वाला सबसे पहले का स्क्वायर ढूंढो. इसके नीचे वाला नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर 25. ओके, नाउ गाइज इट विल बी आइदर 54 और इट विल बी 56. हाउ विल यू फिगर दैट आउट? वी नो द ट्रिक टू 55 स्क्वायर ना. 55 स्क्वायर क्या होता है? लास्ट में 25, 5 इंटू 6 30, 3025. ये 3136 है ना. अगर 55 का स्क्वायर इज स्मॉलर देन द नंबर, सो कैन दिस बी द स्क्वायर रूट ऑफ 54? आई गेस नॉट. इट कैन ओनली बी द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैन ओनली बी 56. Let's try with an even bigger number. Okay, let's try with a number like this, 31684. Last digit is what? 4. अगर लास्ट डिजिट 4 है तो इसका क्या होगा? जो स्क्वायर रूट है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? एग्जैक्टली 2 और 8. 2 और 8. 316, इसके पहले का सबसे नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढो. इसके पहले का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? 279. किसका स्क्वायर है? एग्जैक्टली 17. नहीं, 18 स्क्वायर बड़ा हो जाएगा. आकाशदीप 18 स्क्वायर बड़ा हो जाएगा. ओके, इफ यू वांट टू फाइंड 18 स्क्वायर, लेट्स फाइंड 18 स्क्वायर 64. 4 6 8 का डबल 16, 16 22. 2 1 का स्क्वायर 2 3 324. 324 is bigger than 316, so that can't be the scene. We have to have 17 square which is smaller. हमें इसकी नीचे वाली साइड पे ढूंढना है. ओके, सो 17 स्क्वायर, so it is 172 or 178. So 172 178, how will we find it out? Let's find 175 का स्क्वायर. 25 17 into 18. How we do 17 into 18? 17 स्क्वायर तो हमें पता है, या फिर 18 स्क्वायर पता है. 324, इसमें से 17 माइनस कर देंगे. 304, और सॉरी 307. 307 से ज्यादा है ना गाइस. 3075 से ज्यादा है, सो इसका स्क्वायर रूट विल बी 178. सबको समझा ये ट्रिक गाइस? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर? Okay, Raj, we will solve one more example. Okay, so let's take this 7569. 7569. Okay guys, पहला स्टेप क्या होगा? We look at 9. अगर लास्ट डिजिट 9 है तो इसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? एग्जैक्टली, इट विल बी आइदर 3 और इट विल बी 7. एंड हम कितना नंबर्स छोड़ेंगे गाइस? लास्ट में कितना नंबर्स छोड़ेंगे?
स्क्वायर है तो कितने नंबर छोड़ देंगे? Guys, please reply. Yeah, it's a square, so we will leave the last two numbers. Okay? तो बाकी का क्या बचा? 75. 75 से नीचे वाला स्क्वायर रूट कौन सा है? स्क्वायर कौन सा है? The nearest square. It is 8 square 64. So this has to be 8. It will be 83 or 87. कैसे ढूंढेंगे? We will do 85 का स्क्वायर. 25 8 into 9 is 72. 7225 से ज्यादा है ना अपना नंबर, so this has to be 87 का स्क्वायर. समझा सबको गाइस? अब समझा? ओके. Now guys understand this. Squares, what do you think is easier, a square root or a cube root? तुम्हें क्यूब रूट फाइंड करना इजी लगता है स्क्वायर रूट? What do you guess? A square root sounds very simple, right? As compared to a cube root. But it's actually the other way around. Cube root is very simple. Square root के लिए तुम्हें ये करना पड़ता है ना 3 या 4, like last digit क्या होगा 3 और 7 और 1 और 9. Let's try finding the cubes of everything. मतलब let's देखते हैं कि cubes में कैसे होगा. 1 cube, 2 cube. Tell me what are the cubes of every number? Guys बोलो. 1 cube 1, 2 cube 8, 27, 64, 125, 216, 7 square. गाइस बोलते जाओ. Exactly 343. 8 square. अरे sorry, cube. I mean 8 cube. Exactly 5 and 2 and 729. Guys, notice very carefully. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सारे नंबर्स एक एक बार आ गए. Do you guys understand what is the meaning of this? That अगर हमें कोई भी परफेक्ट क्यूब दिया है, फॉर एग्जाम्पल समझो अगर मुझे परफेक्ट क्यूब दिया है 103823, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. मुझे इसका क्यूब रूट ढूंढना है ना. आई कैन स्ट्रेट अवे अंडरस्टैंड कि लास्ट डिजिट क्या होगा. अगर इधर लास्ट डिजिट 3 है तो द आंसर का लास्ट डिजिट विल बी 7. एंड कैसे मैंने बोला था स्क्वायर में हम ऊपर लाइक 22 स्क्वायर है तो हम ऊपर स्क्वायर लिखते हैं. तो अगर 22 क्यूब है तो मुझे क्यूब रूट ढूंढने के लिए मैं लास्ट के 3 डिजिट्स छोड़ दूंगा. आई हैव टू फाइंड द नियरेस्ट क्यूब जो 103 के नीचे है. 103 के नीचे वाला क्यूब इज 4. द आंसर इज 47. हो गया. That's it. 47 is the cube root of 103823. Let me give you a more difficult number. 287496. अरे guys, last digit क्या है? 6. तो the cube root will end in 6. Okay? 287 के सबसे नियरेस्ट नीचे वाली साइड पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं. 7 स्क्वायर इज 343. 287 के नीचे वाला इज 6 बिकॉज 216. द आंसर इज 66. दैट्स इट. सबको समझा है गाइस ट्रिक? यू कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ लिटरली एनीथिंग विद दिस ट्रिक. any perfect cube का trick. Now let me give you a number. You guys try to solve it. 29791. Tell me the square cube root of this, guys. नहीं सुदीप गलत है. नो गलत है. एग्जैक्टली 31 गाइस. 51 41 61 कहां से आ रहा है तुम लोगों को? वापस समझो. 1 है ना तो लास्ट डिजिट क्या होगा? सिर्फ 1 के क्यूब में आता है. 1 के क्यूब में ही 1 आता है लास्ट डिजिट. सो लास्ट डिजिट तो 1 हो गया एंड लास्ट के 3 नंबर्स छोड़ दो.
गाइस क्यूब है, लास्ट के 3 नंबर्स छोड़ने पड़ेंगे, तो यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट क्यूब रूट, नियरेस्ट क्यूब लोअर देन 29, दैट इज 27. 27 का क्यूब रूट इज 3, द आंसर इज 31. Ved, you can't find the numbers. Like if I give you a random number like this, like 1 2 3 4 5, मैं इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकता. Like there is literally no method. Trust me, I have tried to find methods, formulas and everything for a cube root, but there is no other method to find a cube root of a random number. ये वाली ट्रिक से तुम्हें सिर्फ जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उनका ही क्यूब रूट मिलेगा. एंड सीईटी, स्नैप, एनमैट एंड इवन कैट, तुम्हें किसी में भी परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका क्यूब रूट नहीं आएगा. समझ रहे हो गाइस? आकाशदीप, ऑब्वियसली 11 क्यूब्स, 11 क्यूब एंड्स इन 1, एंड्स इन 11. हाँ तो ठीक है ना, 11 क्यूब एंड्स इन 11, बट लास्ट डिजिट तो 1 है ना. So last digit has to be 1. Okay? With this trick, you can find out the cube root of any perfect cube. Now let's jump on to cubes. Cubes के लिए guys बहुत ध्यान देना. Okay? There are two methods of, like there are two different cases in which you have to find cubes. Okay? चलो. If you have something like a 12, 12 का क्यूब ढूंढना है. Cube will always be found in 4 dashes. चलो. 1 2 3 4. इधर 1 है ना. अब वेरी सिंपली इधर लिख दो 2, इधर लिखो 2 स्क्वायर और इधर लिखो 2 क्यूब, 8. बाद में इधर मारो क्रॉस, इधर मारो क्रॉस, इन दोनों का डबल कर दो, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 8. बाद में नॉर्मल एडिशन, 8 2, इधर 1 कैरी ओवर हुआ ना ऊपर, 7 1 7 2 8. दिस इज द क्यूब ऑफ 12. कहीं समझ रहे हो मैंने क्या किया? यस, आई विल रिपीट ऑब्वियसली सुदीप, आई विल रिपीट. समझो इफ आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट क्यूब ऑफ 13, 13 का क्यूब ढूंढना है. सो क्या करूंगा, 4 डैशेस, 1, इधर लिखूंगा 3 raised to 1, इधर 3 स्क्वायर और इधर 3 क्यूब, 27. ओके. बाद में इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, एंड इन दोनों का डबल लिख दूंगा. 9 का डबल 18 एंड 3 का डबल 6. बाद में नॉर्मल स्कूल में जैसे एडिशन करते रहे वैसे एडिशन करना है. 27 कुछ एडिशन नहीं है तो लास्ट आ जाएगा 7, 7 2 कैरी ओवर. बाद में वापस एडिशन, 29 9 आ गया, 2 कैरी ओवर, 11 1 कैरी ओवर 2. दिस इज द आंसर to find the cube root, so to find the cube of 13. What if we have something like a 31? अगर 31 दिया तो कैसे करेंगे? हम यही ट्रिक को उल्टा कर देंगे. हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 1 एंड बाद में इधर 3 की पावर्स ले लेंगे, 3 9 27, एंड बाद में सेम इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्या आ जाएगा, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18. बाद में सादा एडिशन, 1 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 18 27, 7 2 कैरी ओवर एंड 29. दिस इज द आंसर. सबको समझा मैंने क्यूब कैसे ढूंढा गाइस? वी टुक रिवर्स बिकॉज पहले 1 आगे था एंड दूसरा नंबर पीछे था. तो इसमें क्या नंबर दिया है, आई हैव गिवन 31. पहले हम 13 कर रहे थे ना. यस यस, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. जब हम 13 लेते हैं तब ये साइड, तब 1 लेफ्ट में आ जाएगा. इधर 31 है तो 1 राइट में आ गया. सो लेट्स ट्राई समथिंग मोर. लेट्स ट्राई समथिंग लाइक 51. ओके, कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे 1 1, बाद में 5 के पावर्स लिख देंगे, 5 25
125, इधर क्रॉस इधर क्रॉस, इधर आ जाएगा इसका डबल दैट इज 10, इधर आ जाएगा इसका डबल 50, बाद में नॉर्मल एडिशन 1 15 5 आ गया, 1 कैरी ओवर 76 7 कैरी ओवर 132, दिस इज द आंसर. गाइस सबको समझा मैंने क्या किया? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ट्रिक? धवल कब उल्टा करना है का मतलब बस इतना ही है, जिस साइड तुम्हारा 1 है ना, अगर 1 लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट जाओ, अगर 1 राइट में है तो राइट से लेफ्ट जाओ. लाइक फॉर एग्जांपल अगर 17 दिया है, चल यही ट्रिक 15 लेता हूं, वापस 15 लेता हूं. ओके, पहले 51 था तो 51 को मैंने कैसे किया, 1 बाजू में लिखा है, बाद में 5 के पावर्स लिखे राइट टू लेफ्ट. तो अब मैं उल्टा करूंगा, आई विल राइट 1 लेफ्ट में एंड बाद में राइट साइड जाऊंगा. 5 25 125, इधर क्रॉस, इसका डबल 50, इसका डबल 10, बाद में सादा एडिशन 125 5 12 कैरी ओवर 75 87 7 8 कैरी ओवर 15 23 2 carry over and 3 3375 is the answer. Guys सबको समझा ये? Now yes Aniket, we will come now to if there is no 1 in the number. Yes, this trick is only when the number has 1, मतलब ऐसा अगर 1 with some number है तो. Okay, now what if we don't have 1, अगर 1 नहीं है, what if we have to find something like a square of a 23 which is difficult, तो हम कैसे करेंगे? अब गाइस बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से. ओके, we will write 4 dashes. ऑलवेज क्यूब करना है तो 4 डैश लिख ही दो. ओके, कुछ भी सोचे बिना. इधर आ जाएगा 2 क्यूब, 2 का क्यूब इधर लिख देंगे 8, इधर आ जाएगा 3 क्यूब, 3 क्यूब 27. ओके, नाउ गाइस ये जगह के लिए फॉर दिस प्लेस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, आई विल राइट 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इज हाउ मच 4, 4 इंटू 3 12. ये जगह के लिए उल्टा करेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 square is 9, 9 into 2 18. सबको समझा इधर तक गाइस? इधर तक समझा सबको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. Guys, did everybody understand what I did till here? Okay, now it is the same thing which we did in the previous वाला. इधर आ जाएगा क्रॉस, इधर आ जाएगा क्रॉस एंड इन दोनों का डबल 24 36, नॉर्मल एडिशन 7 2 कैरी ओवर 56 6 5 कैरी ओवर 41 4 कैरी ओवर 12. This is the answer. That's it. You got the answer of a cube. सबको समझा ये guys? Let's try one more example. Do you guys want to try one more example of a bigger number? चलो. Let's try something that is more daunting, like maybe a 43. Okay? Or let's take a 46. चलो. 46 ठीक है, चलेगा सबको? क्या करेंगे? 4 डैशेस. Yes, this trick only works for 2 digit का क्यूब्स. अरे वे 2 डिजिट के क्यूब्स में बहुत पागल हो जाते हैं लोग. 3 डिजिट का क्यूब तो भूल से भी नहीं आएगा तुझे एग्जाम में. 2 डिजिट का क्यूब ही नहीं मिलता लोगों को. चलो, 4 क्यूब इज हाउ मच? 64. 6 क्यूब इज हाउ मच? 216. बाद में क्या करेंगे?
4 square into 6. 4 square is 16. 16 into 6. 96. And 6 square into 4, that is 36 into 4. I'm sorry. Sorry. 24, 148. 148. गाइस इधर तक सबको समझा ना? हाँ सॉरी 144. आई एम रियली सॉरी. 144 सबको समझा इधर तक मैंने क्या किया? अब इसके बाद तो तुम्हें पता ही क्या करना है. क्रॉस क्रॉस इन दोनों का डबल 192 एंड 288. बाद में सादा आपने एडिशन करना है. 216 21 कैरी ओवर 288 प्लस 144 प्लस 21. अब इधर थोड़ा त्रास होगा तुम लोगों को, बट ट्रस्ट मी दिस इज मच बेटर देन मल्टीप्लाइंग 46 3 टाइम्स. तुम लोग 46 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते पागल हो जाओगे. चलो 8 प्लस 1 9 9 प्लस 4 13 3 1 कैरी ओवर. सेम 8 4 2 12 13 14 15 5 इधर लिख देता हूं. 1 कैरी ओवर 4 45. सेम वापस एडिशन 13 3 1 कैरी ओवर 18 20 22 23 3 1 कैरी ओवर. अरे 23 2 3 33. एंड इधर गाइस इन दोनों का एडिशन कर दो. 64 प्लस 33 दैट इज 97. दिस इज द आंसर. सबको समझा गाइस क्या किया मैंने? नॉर्मल एडिशन किया एंड सिर्फ लास्ट डिजिट नीचे लिखा, बाकी का मैंने कैरी ओवर में ले लिया, बाकी का मैंने बाजू वाले के ऊपर ले लिया. Okay guys, now using the same trick I'll tell you to find the cubes of 3 numbers. Okay, find the cube of 24 35 नहीं, 5 वाला तो बहुत सिंपल है. हाँ चलो 35 एंड 43 और 63. Guys, find me the cubes of all 3. जल्दी जल्दी जल्दी. Yes, Akash, there are direct questions on cubes. Not exactly on cubes, you have direct questions. This will be very helpful when you are solving compound interest. You will understand how this trick will help you during compound interest very much. वो compound interest lecture में पता चलेगा. And also in CET directly cube नहीं पूछते, वो लोग क्या पूछते हैं generally? This is something that they have been doing since last 2 years. ऐसा करते हैं वो लोग. Like 27 cube plus 41 square plus 31 into 62 by 4 into 31 या फिर 4 into 93. ऐसा तुम्हें सवाल पूछ देंगे एंड तुम्हें एंड में फाइनल आंसर ढूंढ के ऑप्शन मार्क करना है. तुम्हें ऐसा कुछ पूछ देते वो लोग सीईटी में. दिस इज बीइंग आस्क्ड इन सीईटी सिंस द लास्ट 2-3 years. तो इसके लिए तुम्हें क्यूब का ट्रिक और स्क्वायर का ट्रिक बहुत काम आएगा. Yes, Raj, तुम्हारे दोनों आंसर्स राइट है. फाइंड द थर्ड आंसर. ऑल्सो गाइस फाइंड ऑल द आंसर्स. मुझे बहुत कम लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं गाइस.
आई होप यू गाइज आर एक्चुअली सॉल्विंग इट. रिप्लाई नहीं कर रहे हो ठीक है, बट एटलीस्ट सॉल्व इट. गाइस डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दीज? ये सबको समझा क्या अभी तक? अब तक सब कुछ सबको समझा है? चलो, आई एम ग्लैड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम्स. नाउ लेट्स एक्चुअली, ये सब गाइस प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेजिट सम्स. ओके, लेट्स डू दिस. If a circle is inscribed in a square and touches all the sides of the square, if the radius of the circle is, एक मिनट ना, चैट में क्या आया? Yes, yes, lectures record हो रहे हैं धवल, don't worry. रोहित बस 25% समझ रहा है, that is a little problematic. Please go and look at the recording of the lecture also, रोहित बदिया, तो तुम्हें समझेगा. चलो, now guys, let's do this. Let's solve this question first. Srikanth had 1,50,000 in his bank account. He spent this and this in 2 months. What will the balance amount at the end in his account? How will you do this, guys? Very simply, ये एक नंबर लेंगे, इनमें से इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे, और इन दोनों का टोटल कैसे करेंगे? मेरे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की ट्रिक से. तो ये तुम्हें आराम से, दिस इज वेरी डूएबल. आई विल डू समथिंग दैट इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. देयर इज अ सम जो मैंने डाला था, इट्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये रहा. Two concentric circles have radii 29 centimeter and 36 centimeter respectively. What is the area between the two circles? चल, 29 and 36. So guys, we have two circles. इसका रेडियस 29 एंड इसका रेडियस है 36. सो ये जो बीच का एरिया है ना, ये वाला एरिया, हमें इसका ढूंढना है कि इसका एरिया कितना है. सो हाउ विल यू डू दिस? वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर सर्कल का एरिया फ्रॉम द बिगर सर्कल का एरिया. जनरली वी डू दिस. तो वी विल डू पाई 36 स्क्वायर माइनस पाई 29 स्क्वायर. बट गाइस अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. व्हाट इज दिस दैट वी आर डूइंग? दिस इज पाई कॉमन, 36 square minus 29 square. What does this look like? ये किसके जैसा दिखता है guys? What is the best way to solve this? What does this look like, guys? Somebody please tell me, what does this look like? Exactly. It looks like the formula a square minus b square. A square minus b square. So how can I write this simply? A plus b into a minus b. Now this is much simpler ना. A plus b कितना है? 36 plus 29, 55. 55 into 7. अब 55 into 7 multiplied by pi, that is 22 by 7. So 55 into 22 upon 49. Sorry, 65.
65 into 22 divided by 49. That is how you will get the answer. Or what will happen in the exam is you will have 65 divided by 7. So the options will not be in point. वो pi से multiply नहीं करेंगे. The options will be 65 by 7 pi. That will be the right answer. तुम्हें वो pi से multiply करने की भी जरूरत नहीं है. Yes, Raj, I will repeat. दो सर्कल्स हैं, इसका रेडियस 29, इसका रेडियस 36. सो मुझे अगर ढूंढना है ये पूरे जो इन दोनों के बीच में जो एरिया है, जो पार्ट है, उसका एरिया कितना है. सो हाउ विल आई डू दिस? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया. मैं छोटा सर्कल निकाल दूंगा. सो दैट इज पाई 36 स्क्वायर पाई 36 स्क्वायर दैट इज बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस पाई 29 स्क्वायर दैट इज छोटे वाले सर्कल का एरिया. सो मैं पाई को कॉमन ले लूंगा. पाई 36 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर एंड यूजिंग द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आई विल राइट दिस डाउन एज माइनस 29 इंटू 36 प्लस 29. तो ये कैसे आ जाएगा? दैट इज पाई इंटू 65, ओ सॉरी 65 इंटू 7 इंटू पाई, दैट इज 22 बाई 7. सेवन सेवन कैंसिल. 65 इंटू 22 करना है. 65 इंटू 22 इज 130 प्लस 1300 1300 प्लस 130 1430. This is the answer. समझा सबको guys? Did everybody understand? There is no reason to solve this by finding squares. You have to understand that how can you try to find out things in sums जो हमें first level पे दिखता नहीं है, but try to go a little deeper and you will find tricks in each and every sum. Yes, Hitesh, you can do that also. That is right. चलो, let's do this. 16 वाला करते हैं. There are 1500 mangoes in a storage room. From these mangoes, 32 people brought 11 mangoes each, and 28 people brought 28 mangoes each. तो ये कैसे करेंगे? We will first multiply 32 into 11. 32 into 11 कैसे करेंगे guys? 320 plus 32. 352 and 28 square. 28 square ढूंढने का तरीका 8 square 64, 6 carry over. 16 का डबल 32 plus 6 8 and 3 carry over. 3 का स्क्वायर 4 plus 3 7 784. टोटल कितना हो गया? 136 1136. 1500 minus 1136. So 1 तो cancel. 500 minus 136. So that is 400 minus 36. 400 minus 36 क्या होगा? 364. This is the option. समझा सबको? Did everybody understand? This was only solvable very easily because you know the multiplication trick of 28 square. अगर 28 स्क्वायर नहीं पता होता कैसे ढूंढना है तो फिर तुम इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेते, बट अदरवाइज ये सम करने को मुश्किल से तुम्हें लगेंगे 20-25 सेकेंड. 20-25 ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, उसके ऊपर नहीं जाएगा. ओके, नाउ इसके पहले वाला सम सॉल्व करते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. x square minus 8836 and x is a positive integer. Okay, so this means x square is equal to 8836. so मुझे x मिल जाएगा. x कैसे मिलेगा?
8836 का रूट ढूंढेंगे। 8836 का रूट कैसे मिलेगा? एंड में 6 है ना, तो लास्ट डिजिट क्या होगा गाइस? लास्ट डिजिट हैज टू बी नो गाइस, ये स्क्वायर है तो इट कैन बी 4 और 6, सिर्फ 6 नहीं होगा बिकॉज 4 स्क्वायर ऑल्सो एंड्स इन 6, सो इट विल बी 4 और 6। ओके, तो एंड बाद में 2 नंबर छोड़ देंगे। 88 के नीचे वाला सबसे नियरेस्ट स्क्वायर इज 9, सो 94 और 96, 9025 इज 95 का स्क्वायर। 95 से कम है ना, तो इसका मतलब 94 इज आवर आंसर। सो x is 94, x equals to 94। इट कैन बी, नॉर्मली हमें आंसर जब आता है ना स्क्वायर रूट का, तो इट्स ऑलवेज प्लस और माइनस, बिकॉज 94 माइनस 94 का स्क्वायर विल ऑल्सो बी 8836, बट इधर इन्होंने दिया हुआ है that x is a positive integer। okay, so that is why 94 is x। find the value of x plus 1 square, that is 95 square। 95 square मैंने अभी ढूंढा, that is 9025। सबको समझा ये गाइस? इफ यू नो अ फ्यू कैलकुलेशन ट्रिक्स ना, तो तुम्हारा बहुत इजी हो जाता है। अब सी इवन 14 सम नॉर्मली लोग देख के छोड़ देते हैं, बट नाउ सिंस यू नो द ट्रिक ऑफ अ क्यूब रूट, इट्स वेरी इजी। इट्स अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। सो यू हैव टू बेसिकली फाइंड इसका स्क्वायर क्यूब रूट। 85184 एंड्स इन 4। कौन सा नंबर 4 में एंड करता है? कौन से नंबर का क्यूब 4 में एंड करता है? एग्जैक्टली 4 का। सो द लास्ट डिजिट इज 4 एंड इसके आगे दिस विल बी हाउ मच? इसके नीचे वाला परफेक्ट क्यूब रूट का परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट क्या है? 4, बिकॉज 64 इज द नियरेस्ट क्यूब। 44 इज द आंसर। समझ रहे सबको गाइस? लेट्स सॉल्व दिस। Yes, Akash, you have to practice these tricks regularly. And trust me, the only way to practice these tricks regularly is not to rely on a question. कोई तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि भाई what is 497 into 384? Write down 2 random numbers. Like कैसे मैंने 4 डिजिट नंबर्स तुम लोग को मांगे कि कोई भी रैंडम नंबर्स दे दो, ऐसे ही just write down 2 random numbers like 28154 into 3968. Multiply करो। You have to just find the multiplication of random numbers. You have to find the square of random numbers. अगर तुम if you want to practice square root or cube root, तो cube roots के लिए tell your mom or tell your sister, brother, whoever to just give you the cube of any 2-digit number, not to tell you the cube root। मतलब समझो अगर वो 87 का क्यूब ढूंढ रहे हैं तो उनको बोलो 87 का क्यूब रूट मुझे 87 का क्यूब मुझे ढूंढ के दो, एंड सिर्फ मुझे क्यूब बोलो, एंड यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट। बाद में यू योरसेल्फ फाइंड द क्यूब्स ऑफ 63, 67, 89, 97, ऐसे सब खुद से प्रैक्टिस करो, तो ही तुम्हें समझेगा, तो ही प्रैक्टिस होगा। ओके, नाउ गाइस 13 सम, रियली इंटरेस्टिंग सम। चलो, 32 men and 57 women are working at a construction site on daily wages. A man earns this much per day and a woman earns 270 per day. What is the total earnings of all of them for 15 days? कैसे करेंगे guys? We will find एक मैन कितना कमाता है, we will find 32 men कितना कमाते हैं and 57 women कितना कमाते हैं in per day, in per day, एंड जो आंसर आया ना उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, लेट्स डू इट, बट नाउ अंडरस्टैंड हाउ आई विल डू इट। आई विल नॉट फाइंड 32 into 430. what I will do is that I will find 32 into 43 because that is easier, एंड बाद में एक जीरो लगा दूंगा, जो भी आंसर उसमें जीरो। 6 9 plus 8 17 1
12, 13. 13760. This is how much 32 men earn in one day. 13760. And इसका 57 into 27. 57, 27. 9, 4. ये कैसे करेंगे गाइस? दोनों 7 है ना, 7 into 5 plus 2. 49, 49 plus 4, 53. 5 carry over. 5 into 2, 10, 10 plus 5, 15. 15390. This is how much 57 women earn in per day. So I'll just add these up. 15390. अरे 0 कॉमन रहेगा. 76 plus 39. Yes, that is, I know the answer. 29350. Dhiren. 115. 15. 1 carry over. 28, 29. 29150. And now simply what I have to do is I have to multiply 29150 into 15. 29150 को बाजू में छोड़ दो, n into 15 कर दो. जो भी आएगा उसके एंड में 0 लगा देना. Guys, start finding this. 5, 2. 5, 5 दोनों को ऐड कर देंगे. 10, 10 plus 2, 12. 12. 5 into 9, 45. 45 plus 1, 46, 47. 5 into 2, 10. 10 plus 9, 19. 19 plus 4, 23. 2. 1 into 2, 2 plus 4. 437250. That is this answer. सबको समझा गाइस? राज मैंने बाकी कुछ नहीं किया, मैंने बस मल्टीप्लाई किया. मैंने जस्ट 2915 into 15 किया. It's nothing much. Did everybody understand? Okay guys, आज के लिए मैं बोलता हूं इतना ज्ञान बहुत हो गया. This is the first day. I want to keep it a little light. You have to finish the whole sheet by yourself. Okay? पूरा शीट अपने आप से खत्म करो. And now the next chapter is, the next session is going to be on profit and loss. Okay? Profit and loss is going to be the next session. हाँ धीरे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेशन में बाद में सिखाऊंगा. ओवर द सेशंस अप्रोक्सीमेशन भी आएगा. सो यू विल गेट मोर कंफर्टेबल विद अप्रोक्सीमेशन एज वी गो अहेड. अभी के लिए अप्रोक्सीमेशन मत करो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. गाइस, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. You